Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arham Junior College. Till now we have studied about the representation, then representative assembly, then the methods of representation that are electoral, non-electoral, non-official. Then these methods are further classified in electronic systems. Electoral systems are classified into two ways, and the right to vote. We had studied this much in this chapter. Now moving further, we'll study about the next point, that is channels and levels of presentation. Right? Political parties are the most important channels for political representation. अब political parties क्या है? Political parties, they are the main important channel for political presentation. Right? अगर political party नहीं रहेगी तो आप political representation कैसे करोगे? It's not possible to have a political representation without political parties. They serve as a primary channel of political representation. See, these political parties, they serve as a primary channel of political representation. But what are political parties? अच्छा, जब अपन political parties क्या important role play करती है, these are the source for the political representation, ये सब बात कर रहे हैं अपन, right? They serve as an important channel for representation and all. But what are these political parties? They can be defined as organized group formed by individuals holding similar view or a wide variety of issues. क्या है ये? They can be defined as क्या political parties are? It is an organized group formed by individuals जिनके विचार सब एक जैसे से मिलते हैं, हाँ, जिनके इश्यूज सारे सेम है, वो सब क्या करते हैं? They form a political parties. They seek to obtain political power in order to implement policies based on these views. क्या करते हैं? They seek to obtain political power. वो क्या करते हैं? अगर political party बन गई तो political power भी उनको मिलते हैं ताकि वो policies वगैरह सारे implement कर सके as per the view of the people and all. So this is nothing that these are the political parties. In democracies, parties seek to obtain power through election. Individuals who are member of various party contest election as candidate of this respective parties. अभी in democracy, अभी जो अगर democracy form of government है आपके यहाँ पे, या if you are following the democratic method, then what parties try to get power through election. जब election होते हैं, जब जो election जीत के आता है वही power में रहता है, right? अभी जैसे कांग्रेस बीजेपी सब चल रहा है, तो पिछले 2 इलेक्शन कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है. सो बीजेपी इज इन पावर टुडे इन इंडिया, राइट? नरेंद्र मोदी सेकेंड टाइम बने ना पीएम, दूसरी बार जीत के आए वो. सो दिस इज नथिंग बट हाउ ही वो ये कैसे बने? वो बीजेपी ज़्यादा वोटों से जीत के आई, राइट? इंडिविजुअल्स हु आर मेंबर ऑफ वेरियस पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन एज अ कैंडिडेट of their representative parties. अभी suppose if I stand in election and if I represent BJP, right? तो क्या होगा? मैं वोट मांगने जाऊंगी ना, मेरे को कैंडिडेट का नाम दिया जाता है, हाँ, बीजेपी की कैंडिडेट रसिका है बोल के ऐसे बोला जाता है ना. सो एज अ कैंडिडेट आई आस्क फॉर द वोट, आई आस्क पीपल एंड आई गेट देयर वोट. Moreover, the view of the parties taken together are described as that party's ideology. अभी जो व्यू रहते हैं पार्टी के, जो प्रॉपर पूरा डिस्क्राइब करना रहता है उनको, वो क्या रहती है? वो पार्टी की आइडियोलॉजी रहती है. ड्यूरिंग इलेक्शंस द पार्टीज प्रेजेंट बिफोर द वोटर अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी एंड प्रॉमिस देम दैट दिस प्रोग्राम वुड बी इम्प्लीमेंटेड इफ इलेक्टेड टू पावर. अभी ड्यूरिंग इलेक्शन के वक्त क्या होता है? जो भी कैंडिडेट खड़ा है वो क्या है? उसका एक वार्ड रहता है, लाइक एरिया. इस एरिया से मैं खड़ा हूँ, तो इस एरिया से अगर मैं जीत के आया तो आई विल बी बिकमिंग द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और जो भी जहाँ पे भी वो खड़ा है उस हिसाब से डिपेंड्स ऑन दैट. व्हाट ही डज, ही गो, वो लोगों के घर पे जाते हैं और वो बोलते हैं ना, इनफैक्ट दे टेक्स असेंबली ऑल्सो, हाँ, लाईक आज सभा आहे म्हणतो ना आपण, आज सभा आहे, आज बीजेपीची सभा आहे इथं, तो अपन वहाँ पे जाते हैं. व्हाट हैपन्स देयर?
द कैंडिडेट पुट्स इट आइडियोलॉजी, उनकी पार्टी आइडियोलॉजीज डालते हैं। वो प्रॉमिस करते हैं कि बाबा अपने बहुत से घरों में बिजली नहीं है तो मैं बिजली, आई विल मेक प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन के लिए आई विल मेक श्योर कि यू हैव प्रॉपर वाटर इन योर फील्ड एंड ऑल। ये सारे वो प्रोमिस करते हैं। During election, the parties present before the voters a program based on their ideologies and promise them that this program would be implemented if elected to power. अगर आपने उनको वोट दे दिया तो वो सारे काम करेंगे आपके। The voter who approves of a given party program because they feel that it will benefit them vote for that party's candidate. अभी जो वोटर रहते हैं अगर वो इम्प्रेस हो गए तो उनको वोट देते हैं और वो जीत के आते हैं। थस द एस्पिरेशन एंड विशेस ऑफ द वोटर आर रिप्रेजेंटेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू द चैनल और द मीडियम ऑफ अ गिवन पॉलिटिकल पार्टीज। अभी यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा अभी सपोज मैंने प्रॉमिस किया है कि लाइक मैं प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी दूंगी, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी, इस बात का ध्यान रखूँगी एंड ऑल। हाँ, तो लोगों ने क्या किया, मुझे लोगों ने जिता दिया। अब जीतने के बाद क्या है, ये सारे व्यूज़ मैंने क्या करने चाहिए, ये सारे जो मैंने लोगों को प्रॉमिस किए हैं कि मैं अगर आपने मुझे वोट दिया, अगर मैं पावर में आ गया तो मैं आपके सारे काम करूँगा, तो उसने सारे काम करने चाहिए। कैसे करने चाहिए, ही शुड ये प्रॉपर चैनल से जाना चाहिए। वो सारे डिसीजन उसने जो उसने बोला था मैं ये सारे डिसीजन लूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, वो सारे उसने ही शुड ट्राई टू फुलफिल दैट, और वो इट शुड गो थ्रू प्रॉपर चैनल और हिज विद द हेल्प ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। वो जो पॉलिटिकल पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए कैंडिडेट, वो पॉलिटिकल पार्टी के मदद से ही शुड फुलफिल ऑल द प्रोमिसेस ही हैड मेड। हालांकि कोई करता नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है उनके लिए। However, it must be noted that decision making occurs at different level. अभी डिसीजन मेकिंग क्या है, हर लेवल पे अलग अलग होता है, राइट। इन अ फेडरल सिस्टम लाइक इंडिया इट ऑकर एट बोथ द नेशनल एज वेल एज द स्टेट लेवल। अब फेडरल सिस्टम में, इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम है, तो अपने डिसीजन कहाँ पे होता है, डिसीजन ऑकर्स एट नेशनल एज वेल एज द स्टेट लेवल। इंडिया ऑल्सो हैज़ ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस to the local self-government institution like the ग्राम पंचायत and the municipal council and corporations। अभी इंडिया में क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, लाइक एक कॉन्स्टिट्यूशनल में, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल में ना ये लोकल गवर्नमेंट जो भी है लाइक ग्राम पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनको भी एक स्टेटस दिया है, उनको भी डिसीजन मेकिंग पावर दिया है, राइट। उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है और कुछ पावर भी दिए हैं। They have been entrusted with certain powers and responsibilities which have been enumerated in the Constitution of India। और ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है, काउंसिल्स है, पंचायत है, इनको पावर भी दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, ये सब भी अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। उनके पावर्स क्या है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, ये सारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। दिस मीन्स दैट डिसीजन मेकिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस एट लोकल लेवल। इसका मतलब है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लोकल लेवल पे भी होता है। इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर रिप्रेजेंटेटिव असेंबली एट द 3 लेवल एंड पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट देम। अभी इलेक्शंस कहाँ पे होते हैं, असेंबलीज के वगैरह सारे तीनों लेवल पे होते हैं। दस पार्टीज सर्व एज अ चैनल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एट ऑल दिस 3 लेवल। ये पार्टीज क्या है, दिस पार्टी सर्व्स एज अ channel of representation at the 3 level. Now the next point is the classification of political parties. In India, political parties are classified as national और state level। अब political parties भी दो टाइप की हैं, एक national level पे भी है और एक state level पे भी parties है। The Election Commission of India has certain criteria to classify a party at national or state level। अब इलेक्शन कौन लेता है, there is an election commission of India, he has certain criteria for classifying the parties national और state level के लिए। लाइक कोई भी उठ के बोल नहीं सकता कि बाबा मेरा नेशनल लेवल का पार्टी है, नो,
उसके लिए सर्टन क्राइटेरिया है एंड दिस क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द origin of political parties. It would be interesting to find out the process by which party came into existence. अभी पार्टी सब कैसे आए? अपन पॉलिटिकल पार्टीज सब बोल रहे कर रहे, बट ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज आए कहाँ से? They merge a little later than the representative assembly mentioned in the earlier section. ये कब आए? ये थोड़ा सा लेट आए. जब अपन रिप्रेजेंटेटिव असेंबली की बात करते हैं उसके बाद ये पार्टीज वगैरह आए. एज दिस असेंबली केम टू हैव मोर ऑफ अ से इन अ कंट्रीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली who held similar view began gathering together to influence the policies of the government in a direction that they desire. Such groups soon came to be described as political parties. अभी क्या हो गया? अभी असेंबलीज बन गए यहाँ पे, अपने यहाँ पे असेंबलीज में क्या हो गया? डिसीजन मेकिंग सब प्रोसेस होता था. मेंबर्स सबके व्यू एक जैसे होते थे क्या असेंबली में? नहीं, सबके व्यूज़ अलग अलग होते थे. जिन लोगों के व्यूज़ एक जैसे है, आइडियोलॉजी जिनकी मिलती है, वो सारे लोग एक साथ आने लग गए. हाँ, दे स्टार्टेड बिगैन कमिंग टुगेदर, और इससे क्या हो गया? दे स्टार्टेड फॉर्मिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, और इससे क्या हो गया? गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्म करने के लिए सबको साथ में आना ही था. तो जिनकी आइडियोलॉजी सेम है वो साथ में आए एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग ग्रुप एंड दिस ग्रुप सून केम टू बी नोन एज द पॉलिटिकल पार्टीज. Once power passed into the hands of this assembly and it became established that whosoever commanded a majority in this assembly would head the executive. अब क्या हो गया? ग्रुप बन गए. अब असेंबली में कुछ भी पास हो गया, लॉ वगैरह कुछ भी पास हो गया, तो कैसे होगा? तो ऐसा डिसाइड हो गया, जिसके पास भी मेजॉरिटी रहेगी, जो भी पार्टीज बन गई यहाँ पे, जिसके पास भी मेजॉरिटी रह गई, he will become the executive head. He will be suppose the head the वो असेंबली का हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बनेगा, जो भी मेजॉरिटी में रहेगा. द नीड फॉर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बिकेम increasingly felt since such group would ensure that majority would last for a reasonable amount of time and thus ensure political stability. अब क्या हो गया? अब प्रॉपर अच्छी ग्रुप्स फॉर्म करने लगे, और ग्रुप्स भी ज़रा बड़े बड़े फॉर्म होने लग गए विथ मेजॉरिटी, क्योंकि अगर ज़्यादा मेजॉरिटी रही तो क्या रहेगा? अपन बहुत टाइम तक रहेंगे एंड देयर विल बी अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. दिस प्रोसेस कैन बी सीन इन द 18th century इन द UK. ये प्रोसेस अपने को यूनाइटेड किंगडम में दिखेगा. अ सिमिलर प्रोसेस ऑकर्ड इन मैनी कंट्रीज एज वेल. ऐसा ही और दूसरे कंट्रीज में भी हुआ. As more and more people secured the right to vote, this party expanded their membership among the voters and became well-knit organization. अभी जैसे क्या हो गया? पहले क्या था? वोट सिर्फ बड़े लोग करते थे, ओनली मेन. फिर क्या हो गया? ऑल मेन गॉट राइट टू वोट, देन वुमेन ऑल्सो गॉट राइट टू वोट. क्या हो गया? वोट करने का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी सबको चांस मिल गया वोट करने का. तो क्या हो गया? पार्टी भी एक्सपांड होने लग गई एंड दे बिकेम वेल किन्ड ऑर्गेनाइजेशन, और वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गया. इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टी अरोज एज अ रिजल्ट ऑफ फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी क्यों आई? क्योंकि इट वॉज ड्यू टू द ब्रिटिश रूल, क्योंकि अपने को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना था, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी आई. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बी फॉर्म्ड इन इंडिया which can be described as a political party. अपने यहाँ पे सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी कौन सा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस has formed in 1885 as a political party. As the freedom parties like the Muslim League, the Hindu Mahasabha, Union Party, the Communist Party of India, the Independence Labour Party among other were formed. अभी सबसे पहले फॉर्म हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस. उसके बाद और भी पार्टी फॉर्म हुई, क्योंकि अपने को आज़ादी चाहिए थी. अपनी आज़ादी के लिए हर कोई ऐसे छोटे छोटे पार्टीज फॉर्म करके लड़ रहा था. अमंग देयर वर द मुस्लिम लीग,
द हिंदू महासभा, यूनियन पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये सारे फॉर्म हुए थे. आफ्टर इंडिपेंडेंस many more parties like the Peasant and Workers Party, Dravida Munnetra Kazhagam, Jan Sangh Socialist Party, Republican Party of India, Shiv Sena among other were established. अभी ये सारे पहले जो अपन ने बोला मुस्लिम लीग, राइट, हिंदू महासभा पार्टी, ये सारे क्या होते बिफोर इंडिपेंडेंस थे. इंडिपेंडेंस के बाद जनसंघ, रिपब्लिक पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, शिवसेना एक्सेट्रा, ये सारे कब हुए? ये ऑल दिस पार्टीज वर फॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस. जनरली स्पीकिंग, newer parties are formed when some sections of society believe that the existing political party are not or cannot fulfill their aspiration. अभी वो ऐसे जनरल बोल रहे हैं. बहुत से पार्टीज नए कब आए? जब ये पुराने पार्टीज जो थे, व्हाट दे फेल्ट कि ये पुराने पार्टीज अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो भी एक्सपेक्टेशंस थे, दे वर अनेबल टू फुलफिल दैट. सो व्हाट दे स्टार्टेड कमिंग टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी. और ये दिस हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दिस हैज़ बीन अ मेजर रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टीज इन इंडिया. और ऐसे पूरे वर्ल्ड में हुआ और वैसी तरह इंडिया में भी हुआ, और इस तरह से इंडिया में बहुत से नए नए पार्टीज फॉर्म हुए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप. Interest and pressure groups are informal channels that seek to represent the people. Interest and pressure groups क्या है? ये just a informal channels है and they just try to represent the people. A pressure group is an interest group that is organized to influence public and special government policy. A pressure group क्या है? Is an interest group जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके पब्लिक को और गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है कि बाबा देखो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे बोल के. दिस ग्रुप डज नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू बिकम अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और द अपोजिशन. सी, ये जो प्रेशर ग्रुप है, इंटरेस्ट ग्रुप है ना, व्हाट दे डू, दे डोंट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्शंस और बिकम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और द अपोजिशन. It seeks to influence policies from outside by putting pressure on the government. वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट के मेंबर तो नहीं होते, बट दे ट्राई टू पुट एन आउटसाइड प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट. बट गवर्नमेंट पे प्रेशर लाने की ट्राई करते हैं. समटाइम्स द वर्ड लॉबी ग्रुप इज यूज टू डिस्क्राइब दिस इंटरेस्ट ग्रुप. ये लॉबी ग्रुप जो है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब दिस इंटरेस्ट ग्रुप. से देखो, ट्रेड यूनियन, agriculture interest group, students organization, these are the example of pressure groups, right? ट्रेड यूनियन, अब ट्रेड यूनियन क्या गवर्नमेंट का पार्ट है क्या? नहीं है. ट्रेड यूनियन कहाँ पे रहते हैं? जहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज रहते हैं वहाँ पे उनका ट्रेड यूनियन वगैरह रहता है, राइट? अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है, इफ़ दे फेल्ट कि बाबा उनके साथ गलत हो रहा है, व्हाट दे हैपन, दे ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट कि बाबा आप ये फैक्ट्री के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करो. Agriculture interest group, students organization, right? So these are interest and pressure groups. Pressure groups are different from political parties, but obviously pressure groups different रहते हैं ना political parties में. parties से first is the political parties are the part of government system. very true, बराबर है ना? ये political parties किसके लिए रहते हैं? they are the form of government, right? वो part of government system है. बट ये प्रेशर इंटरेस्ट ग्रुप आर दे पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम? नो. दे सीक टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रॉम द इनसाइड. क्या होता है वो? दे सीक टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं बट बिना पार्ट गवर्नमेंट के हुए. अ प्रेशर ग्रुप ट्राई टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड. प्रेशर ग्रुप क्या करता है? इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड. They do not stand in election and become the member of the legislation. ना ही वो इलेक्शन में खड़े रहते हैं, ना ही वो मेंबर रहते लेजिस्लेटिव असेंबली के, राइट? सेकेंड पॉइंट इज पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ ब्रॉड एजेंडा. पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्या रहता है? बड़ा एजेंडा रहता है. दे सीक टू रिप्रेजेंट द पीपल फॉर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड अदर कंसर्न.
पॉलिटिकल पार्टीज के पास बड़ा एजेंडा रहता है, वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं किस किस मामले में, फॉर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, सब बातों के लिए दे स्टैंड फॉर द पीपल. बट दिस प्रेशर ग्रुप यूजुअली हैव अ नैरो फोकस. इनका फोकस क्या रहता है, नैरो रहता है. उनके बस स्पेसिफिक इश्यूज है, वो स्पेसिफिक इशू स्पेसिफिक कॉज के लिए फाइट करते हैं, और उनका वो इशू कॉज खत्म हो गया कि दे आर back to the normal routine, they are back to their normal life. Pressure group are also different from social movement. See, pressure group, they are different from social movement. The pressure group usually have a more formalized structure. और ये प्रेशर ग्रुप के पास क्या रहता है, प्रॉपर फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर लेता है. सोशल मूवमेंट यूजुअली डू नॉट हैव अ फॉर्मल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन. अब प्रेशर ग्रुप के पास क्या रहता है, नॉर्मल फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर प्रॉपर रहता है, बट सोशल मूवमेंट डू नॉट हैव फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे टेक अप अ कॉज एंड परस्यू. वो जिस कॉज के लिए कर रहे हैं वो कॉज खत्म होते ही दे आर बैक टू नॉर्मल. लाइक चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट किसके लिए था, ट्रीज कट किए जाने वाले थे और सम डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑल. तो फिर व्हाट पीपल डिड कि वाह ये बड़े बड़े ट्रीज कट नहीं होंगे, इसलिए वो लोग झाड़ को जाके चिपक गए. लाइक दे स्टार्टेड होल्डिंग द ट्रीज टाइटली सो दैट नो वन कैन कट दैट ट्री. तो उसको नाम दिया है चिपको मूवमेंट. दिस इज वाई समटाइम्स इंटरेस्ट ग्रुप्स आर डिस्क्राइब एज रिप्रेजेंटेटिंग ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट. इसीलिए ये इंटरेस्ट ग्रुप को अपन नाम देते हैं ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट. नाउ द लास्ट पॉइंट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. Non-governmental organization, that is NGOs, are another mechanism for representation. See, NGOs क्या है, ये एक another form of representation है. This is usually a private या फिर non-commercial group that want to achieve its aim through a non-violent struggle. ये ग्रुप क्या है, दिस इज यूजुअली प्राइवेट. ये कभी प्राइवेट भी, दिस ग्रुप, ये एनजीओस कैन भी प्राइवेट भी हो सकते हैं, नॉन कमर्शियल ग्रुप भी हो सकते हैं जो सर्टन एम्स के लिए बनाए हुए हैं, विच कम अप विथ सर्टन एम्स. दे यूजुअली प्रमोट और डिफेंड अ कॉज. उनके पास एक प्रमोटर, एक कॉज रहता है, वो कॉज के लिए दे स्टार्ट एन एनजीओ. दे हैव पीपल विथ स्पेसिफाइड नॉलेज एसोसिएटेड विथ इट. उनके पास लोग रहते हैं जिनको स्पेसिफिक नॉलेज रहता है और दे आर वेल नोन पर्सन इन द सोसाइटी. सी, अभी अपन वीसी सलमान खान का एनजीओ है बीइंग ह्यूमन का, राइट. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. आमिर खान का है, युवराज सिंह, उसका कैंसर के रिलेटेड एनजीओ है. ऑल ऑफ द अबव आर चैनल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. व्हाट आर दिस? All are these are the channels of representation. They seek to present the people's aspiration and concern. क्या करते हैं, वो people के aspirations, concern, इन सब का ध्यान रखते हैं. So in this chapter we have seen how people seek to represent themselves through various channel. इस चैप्टर में अपन ने क्या देखा, people कैसे अपने रिप्रेजेंट खड़े करते हैं और कैसे कैसे चैनल से रिप्रेजेंट करने के, and how people how they are benefited to people. Representative government is an important aspect of the successful democracy. Representative government क्या है, ये एक important aspect of a successful democracy. Let us now turn to another aspect of government that is equally important. अभी एक और aspect of government है that is also equally important. We shall see the role of judiciary in the next chapter. अपन जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.